standard solution. What are these standard solutions? Anybody is having idea what are standard solutions? So solutions with known properties. With Known properties. known properties. Okay. Anybody else? A solution of a known concentration. Okay. Yeah, solution of known concentration is known as standard solution, not the known property. Okay. Okay, so today we are going to discuss about the different types of qualitative and quantitative test. There are two types of tests are done to identify the any means compound, or especially we are talking about like biomolecules. So there are two types of tests possible. One is qualitative test and other one is the quantitative test. So do you have any idea what is this qualitative test and quantitative test? Just guess with name only what is meant by quality and quantitative quantity. Quality means what? What do you mean by the quality of anything? Quality मतलब the identification of the elements or the what is the Yes, yes, very nice. So whenever we talk about qualitative test, then we just going to identify that what is the element or what is the compound it is present. Okay, so we are not going to quantify that how much quantity is there. So suppose you are given with any food step or any particular food, unknown fruit. You don't know what is the composition of that fruit, whether this fruit is rich in protein, carbohydrate, fat, or vitamin, whatever. If you don't know, so you are going to do some test first, and then you will find that okay, this fruit is rich in carbohydrate or protein or anything. Then we can suggest, like we are saying that bananas are rich in carbohydrate source, they are the rich source of carbohydrate. Poultry and meat, all these are rich source of protein. So this time, now we are just talking about the quality of that one. So that type of test which indicates just the identification, the quality, those type comes under qualitative test. But if you are interested to know that how much quantity is there, like how much protein is there, how much carbohydrate is there, so that type of test comes under quantitative test. Okay. So first, if anything is there, so people will start their experiment with the qualitative test, because if you are not knowing that what is the quality, whether it is protein or carbohydrate, without that you cannot go for the quantification. So we'll start our experiments also with the qualitative test. So we are going to study that qualitative test for carbohydrate, protein, and fats. Okay. So any idea? Have you done any this type of experiment in your intermediate qualitative test? So we'll start with the qualitative test. Who is joining now? Okay, so we'll start with the simple carbohydrates. Okay, so how to identify the presence of carbohydrates? So for this very simple test is done, that is called Benedict test. And in this case, one reagent is there that is called Benedict reagent. So whenever we are adding this reagent to the our test sample, it will show some color change, and that's how we confirm that what type of reaction is happening. So this is the these are the different types of colors it is coming. Suppose if you are given with any sample, in that we have to add a small quantity of Benedict reagent, like it will be like 10 drops or 15 drops, and just hold for 2 minutes, and then you keep on shaking. Sometimes we need to heat also. So you will get, first it will blue color, green, yellow, and red. So different types of color will come. So depending upon the concentration
carbohydrate in your sample, color will be there. Like if it is very light blue color, so very small quantity. If it is little bit more, then green color. More some more means it's yellow color, and it is very concentration, then it will come orange or reddish yellow color type will come. So that's why this test also comes under the semi quantitative test, because by seeing the color you can say whether it is very low in the sugar or very high in the sugar. If light blue color is there, then you can say that very small quantity is there, and if it is red type of color is there, then we can say that very high color is there. Okay, so that's why it also called as semi quantitative, because with just you can say that low or high, exact quantity you cannot say, but some idea you will get with this test. So principle behind this test is like related to your reducing power only. You know, carbohydrates, especially monosaccharides, are reducing sugar. So what happens in case of this Benedict reagent? It is a complex mixture of sodium carbonate, sodium citrate, and copper sulfate pentahydrate. So what happens whenever it is there? So it will react with the carbohydrate if reducing sugars are there. In the reagent insoluble red copper oxide color. So based on that carbohydrate content, if it more carbohydrate is there तो वो red color ज़्यादा dark हो जाता है, अगर less है तो वो blue या green या orange color हो जाता है. ओके, तो बेसिक ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ ये रिएक्शन क्या है कि इसमें अगर आपका रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है तो दिस इज बेसिकली फॉर योर रिड्यूसिंग शुगर्स और मोनोसेक्राइड आप कह सकते हो, उसके लिए ये टेस्ट है. अगर रिड्यूसिंग शुगर या मोनोसेक्राइड्स है हमारे पास तो क्या होगा कि ये कॉपर जो उसमें जैसे कि रिएजेंट में मैंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट एंड कॉपर पेंटा सल्फेट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉपर आपका कंपाउंड है Cu प्लस जो था Cu2 प्लस विल बी रिड्यूस टू Cu प्लस, दिस विल गिव द रेड कलर प्रेसिपिटेट. तो ये सारा आपको कलर दिखाई पड़ता है. तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जब आप लोग लैब में रहते हो देन यू विल बी गिवन विद द सैंपल इन टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में अराउंड 2-3 ml सैंपल लेते हैं. लाइक वी आर प्रिपेयरिंग द ग्लूकोज सॉल्यूशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लाइक 5%, 10%, 20, 30, 4-5 कंसंट्रेशन का हम ग्लूकोज सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट कंसंट्रेशन के ग्लूकोज सॉल्यूशन दे दिया जाता है. एंड देन यू हैव टू ऐड द रिएजेंट, 10 ड्रॉप्स ऑफ रिएजेंट ऐड करना है और देन उसको हम लोग हीट करते हैं. जब हम हीट करते हैं तो उस समय रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा कि वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा. अगर बहुत कम क्वांटिटी हो तो वो बेनेडिक्ट का कलर ब्लू होता है तो ये ब्लू ही रह जाएगा. अगर थोड़ा क्वांटिटी है तो ग्रीन, और फाइनली अगर ज़्यादा है तो ये रेड कलर में चेंज होगा. तो दिस इज अबाउट योर क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली फॉर मोनोसेक्राइड्स. तो इसमें किसी को डाउट है? जब आप लोग यहाँ आ जाओगे तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे. ये केमिकल है मेरे पास तो ये प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं लैब में, तो ज़्यादा क्लियर होगा. बट अभी के लिए प्रिंसिपल समझ लो एटलीस्ट. सेकेंड इज द फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च क्या होता है? इट इज पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड. ओके, तो यस पॉलीसेकेराइड, और वी कैन से दैट इट इज कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके, तो इसके लिए करते हैं, इसमें आयोडीन के साथ हम रिएक्ट करते हैं, इसको आयोडीन टेस्ट नाम दिया गया है. तो जैसे कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन होता है. तो एमाइलोज में जैसे मैंने बताया था बिकॉज ऑफ दैट कॉइल्ड लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि बिल्कुल कॉइल्ड हो जाता है. तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल क्या होता है, इट गोज इनसाइड एंड वो बीच में उसके जाके फंस जाता है, तो ब्लू कलर देता है. वेयर इज एमाइलोपेक्टिन दैट इज आल्सो पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज ओनली, बट इसमें क्या होगा 1,4 के अलावा 1,6 ब्रांचिंग ऑल्सो होता है. बिकॉज ऑफ दैट इट गिव्स पर्पल कलर, वेयर एज ग्लाइकोजन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन? दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है मैम, दोनों सेम चीजें हैं. सेम चीज नहीं लेकिन सेम स्ट्रक्चर सेम होता है मैम. आर यू श्योर? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो. लिंकेज अलग होता है दोनों के बीच. राइट, लिंकेज पैटर्न में मतलब लिंकेज भी सेम होता है पर लिंकेज पैटर्न डिफरेंट होता है.
एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि ब्रांचिंग जो होता है वो ज्यादा दूर दूर पे होता है, बट इन केस ऑफ ग्लाइकोजन एवरी 8 to 12 मॉलिक्यूल पे होता है, तो वो ज्यादा मतलब क्या कहे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और एमाइलोपेक्टिन होता है वो थोड़ा स्प्रेड रहता है, उसमें भी दोनों में अल्फा 14 एंड अल्फा 16 पे ब्रांचिंग होता है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि एक में ब्रांचिंग थोड़ा दूर दूर पे होता है, एवरी 20 to 22 मॉलिक्यूल में होगा इन केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन, वेयर इज इन केस ऑफ ग्लाइकोजन वो 8 to 12 मॉलिक्यूल पे होगा, तो ज्यादा ब्रांचिंग होगा, ज्यादा कंडेंस होता है। और दूसरा डिफरेंस है कि एक एनिमल सोर्स है और दूसरा प्लांट सोर्स है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो ये आयोडीन टेस्ट समझ में आ रहा है। अभी एमाइलोस में क्या होता है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आयोडीन पूरा फिट हो जाता है उसमें, एंड दैट्स व्हाई इट इज गिविंग डीप ब्लू कलर। बाकी सब में वो फिट नहीं हो पाता है, तो इसमें एक पर्पल है और दूसरे में ब्राउन कलर है। तो ये सारे टेस्ट हम लोग लैब में करेंगे, तो ये आप लोग और ज्यादा क्लियर होगा। इसका प्रोसीजर वही है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब रहेगा, टेस्ट ट्यूब में आपको सैंपल दिया जाएगा, देन यू हैव टू ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन। और जब आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन जनरली येलो कलर का होता है, और जब उसमें आप ये डाल दोगे सैंपल में, तो इफ क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, स्पेशली पॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट है, दैट टू एमाइलोज अगर होगा तो ये डार्क ब्लू कलर हो जाएगा, और अगर एमाइलोपेक्टिन होगा तो उसमें पर्पल, एंड ये होगा तो ब्राउन कलर में हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे रहता है येलो ब्राउन कलर है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव फॉर स्टार्च, मतलब अगर ये कलर आता है आपको, सपोज किसी बंदे के टेस्ट ट्यूब में कोई कलर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि इन दैट सैंपल देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट, मतलब पॉलीसेकेराइड और स्टार्च इज नॉट देयर। ओके, नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के प्रेजेंस के लिए हम निनहाइड्रिन टेस्ट करते हैं। तो निनहाइड्रिन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड को करता है। तो उससे क्या होगा, CO2 और अमोनिया बनता है, और उसके बाद क्या होगा कि अमोनिया जो बन जाता है वो फिर रिएक्ट करता है निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ और ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स बनाता है। पर इसमें क्या एक्सेप्शन है, प्रोलीन और हाइड्रोप्रोलीन होता है, ये दोनों ब्लू कलर नहीं देती, ये दोनों येलो कलर देता है। तो क्यों प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन येलो कलर देता है, ब्लू कलर नहीं देता है? प्रोलीन क्यों डिफरेंट है बाकी अमीनो एसिड से? प्रोलीन बाकी ग्रुप को कैरी करते हैं। ओके, और कुछ रीजन? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन जैसा कोई टर्म सुना है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ये जो अल्फा एमिनो, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर रखा है कि अल्फा एमिनो एसिड्स, तो जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। अल्फा एमिनो कहने का मतलब क्या होता है कि दे आर प्राइमरी लिंक टू द कार्बन, कार्बन एक कार्बन के साथ वो प्राइमरी लिंक्ड रहते हैं। लेकिन प्रोलीन में क्या होता है कि सुबह ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें वो पेंटा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आइमिनो होता है, एमिनो नहीं होता है, इमिनो उसको हम कहते हैं, IM से स्टार्ट होता है वो, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इमिनो ग्रुप क्या होगा कि उसमें वो सेकेंडरी एमीन हो जाता है, उसमें 2 कार्बन से वो जुड़ा रहता है वो नाइट्रोजन वहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दिस दैट विल गिव द येलो कलर। तो प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये प्रोलीन का ही डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जब ऐड हो जाता है तो देन वी कॉल इट एज अ हाइड्रोक्सीप्रोलीन। तो दिस इज एक्सेप्शन, बाकी सारे हैं। इसका आप रिएक्शन देखोगे तो आपको और समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो ये एमिनो यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, लेकिन ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, तो 2 के साथ ये अटैच होता है। बिकॉज ऑफ दिस ये क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स, एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, अमोनिया रिलीज होगा, देन दिस अमोनिया विल रिएक्ट विद द अनदर निनहाइड्रिन रिएजेंट, और वो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। But in this case what happens, ammonia will not be released because it is a part of this structure, so it will not be released। तो finally आपका जो Riemann purple color आना चाहिए, complex बनना चाहिए, this complex is not forming, and that's the reason it is yellow in color whereas other amino acids are blue in color। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो जहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन एंड दैट टू व्हाई दिस प्रोलीन इज गिविंग येलो कलर, या फिर ऑप्शंस में रहेगा कि निनहाइड्रिन टेस्ट किया गया तो प्रोलीन में कौन सा कलर होगा, बिकॉज बाकी सारे में ब्लू कलर होता है पर प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन में आपका येलो कलर होता है। ओके,
अब इसका प्रोसीजर है कि कैसे इसको करते हैं, तो सेम थिंग है कि हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे सैंपल और उसमें हम ये करेंगे, यहाँ पे 2% एनहाइड्रिन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, 0.2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रिन को डिसॉल्व करेंगे 10 ml ऑफ एसीटोन या एथेनॉल में। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको एसीटोन या एथेनॉल में सॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करेंगे एंड देन क्या करेंगे, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। जस्ट विल 2 मिनट के लिए उसको गर्म करते हैं। गर्म जब करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट ब्लू कलर। इफ ब्लू कलर इज देयर दैट मीन्स कि वी कैन से दैट अल्फा एमिनो एसिड इज प्रेजेंट। इफ ब्लू कलर इज नॉट देयर दैट मीन्स कि देयर इज नो प्रोटीन इन दैट सैंपल। और अगर येलो कलर आ रहा है दैट मीन्स कि प्रोटीन तो है बट दैट प्रोटीन इज रिच इन प्रोलीन। सो दिस इज अबाउट योर क्वालिटेटिव टेस्ट। तो ये सारे बहुत सारे क्वालिटेटिव टेस्ट है, बट जो हमारे लैब में केमिकल्स अवेलेबल है उसके बारे में ही मैं डिस्कस करना चाह रही थी यहाँ पे। तो इसमें कोई डाउट आप लोग को? कुछ बोल नहीं रहे, सब लोग सो रहे हैं। नो मैम। कुछ लोग ही केवल जगे हुए रहते, बाकी सब तो बस लगा के। शुभम कुमार, शुभम कुमार आप हैं क्लास में? यस मैम। आप एक्सप्लेन करो ये एनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है। नो मैम। नो मैम मतलब एनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है? महेंद्र को बोला। ओके, तो आप बताओ क्या होता है एनहाइड्रिन टेस्ट? एनहाइड्रिन टेस्ट जो है मैम, yes ma'am, it is used for the test of presence of protein. As we can say, it is a powerful oxidizing agent which cause oxidative decarboxylation of amino acids, alpha amino acids. So when we test protein with anhydrine test, so then it gives blue color except proline and hydroproline. They give yellow color because in the reaction with other amino acids except proline and hydroproline, ammonia is not released. So ammonia is released, so they give blue color. And in case of proline and hydroproline, ammonia is not released, so they give yellow color. ओके, वेरी गुड। इतने कम समझ में पूरा आपको ऑलमोस्ट याद हो गया सब कुछ। I'm trying my best. Yes. Okay, Prerna, are you there in class? यस मैम। ओके, आप बताओ आयोडीन टेस्ट में डिफरेंट कौन कौन से कलर आते हैं आयोडीन टेस्ट में? ग्लाइकोजन कौन सा कलर देगा आयोडीन टेस्ट में? Okay, what is difference between glycogen and amylopectin? यस मैम। मैम ग्लाइको मैम, हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ मैम, ग्लाइकोजन मैम नॉर्मल वो अनब्रांच्ड है और अमाइलोपेक्टिन मैम ब्रांच्ड है। ओके, प्रतीक, प्रेरणा सही बोल रही है गलत बोल रही है? प्रतीक कुमार, क्लास में हो आप? यस मैम। प्रेरणा जो बोल रही है सही बोल रही है गलत बोल रही है? अनिकेत सही बोल रही है वो। सही बोल रही है, ओके। अनिकेत, प्रेरणा सही बोल रही है गलत बोल रही है? अनिकेत कौन? यस मैम। प्रेरणा सही बोल रही है गलत बोल रही है? नहीं मैम, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होता है पर ब्रांचिंग का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, पर हमारे व्यक्ति में ब्रांचिंग पैटर्न में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए कलर अलग होता है। ओके, कौन सा कलर होता है एमाइलोपेक्टिन में? पर्पल। ओके, और ग्लाइकोजन में? रेड। ओके, अभिनव ये सही बता रहे हैं?
अभिनव झा, रोल नंबर 95। Yes, ma'am. ये सही बोल रहे हैं, मम्मी जो बोल रहे हैं वो सही है। पर्पल एंड एमाइलोपेक्टिन रेड कलर देता है, वो सही बता रहे हैं। No, ma'am, that's wrong. क्या Glycogen gives फिर? brown color and amylopectin purple. ओके, और कौन है इनमें से? चंद्रिका, क्लास में हो आप? चंद्रिका आनंद, रोल नंबर 21। देन ललित कुमार, क्लास में हो आप? ओके, चलो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट ओनली। तो ये हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट था। ओके, देन कमिंग टू द क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब क्वांटिटेटिव टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें क्वांटिफाई करना होगा कि कितना क्वांटिटी है। तो अब हम लोग ये पढ़ने जाएंगे कि कैसे हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्वांटिफाई। सपोज यू आर गिवन विद एनी फूड सैंपल एंड वी यू आइडेंटिफाई दैट ओके दिस फूड सैंपल और फूड सैंपल इज रिच इन प्रोटीन, but the next question come, if it is rich in protein then how much quantity is there? Means generally we express in terms of percent or gram per 100 gram or mg per 100 gram, like that. So that can be done with the help of spectrophotometer. Spectrophotometer is an instrument which is used for the quantitative test. So have you seen a spectrophotometer? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, we'll just see the principle. I think by seeing this instrument you may get, have you seen this instrument anytime in lab? My slides are visible to you? Yes. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. have you seen this type of instrument in laboratory? No, ma'am. Okay, so this is a spectrophotometer. Okay, so in this what we are doing, we are keeping our sample inside this small tubes are there na, that we call it as a cuvette. So इस क्यूवेट में क्या करते हैं, हम सैंपल रखते हैं, फिर ये ढक्कन बंद करेंगे एंड देन इसमें जो स्विच ऑन करते हैं, वट एवर प्रोसीजर होगा, तो यहाँ जो ये है डिस्प्ले में इट विल शो द रीडिंग इन दिस फॉर्म लाइक 0.2 0.3 समथिंग. सो दिस वी कॉल इट एज अ ऑप्टिकल डेंसिटी और इन शॉर्ट वी आर कॉलिंग इट एज अ ओडी. तो कोई भी सैंपल आता है तो उसका ओडी जितना होता है दैट इज अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट वन. So if OD is high, that means कि high concentration is there. OD is low, that means कि low concentration है. तो हम generally what we are doing that suppose you know that glucose, any glucose is there. So we will prepare different concentration of glucose like 1% glucose, 2%, 3, 4, 5 ऐसे करके हम क्या करते हैं 10 samples बना लेते हैं and then we'll take the reading of this one. So suppose you are getting for 1% you are getting value is like 0.1. So 2%, how much you should get value? Because concentration is doubling, so OD value should also double. Okay, so it will get around 0.2. सपोज फिर आप क्या करें, 2 से आप 4% ले रहे हैं तो OD वैल्यू विल बी ऑल्सो 0.39 और 0.4 ऑल्सो समटाइम्स. ऐसे क्या होता है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है OD रीडिंग बढ़ता जाएगा. तो सपोज आप अब यहाँ पे क्या ले रहे हो कि 8 ले रहे हो तो देन 0.4 से आपका रीडिंग 0.75 या 0.8 ऐसे कुछ आ जाता है. तो दिस इज योर नोन कंसंट्रेशन. तो आपको शायद याद होगा स्कूल में आपने ग्राफ बनाया होगा, वो पेंसिल से ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते थे, याद है कुछ कैसे बनाते थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते थे और उसको लाइन उसके बेसिस पे वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे लाइन खींचते थे. कुछ किया है ऐसा कभी कोई काम 12 मतलब स्कूल लाइफ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे भी हम लोग करेंगे कि आप जैसे ले रहे हो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ले रहे हो तो उसको क्या करेंगे दैट विल बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस और जो आपका ओडी वैल्यू आ रहा है डिफरेंट डिजिटल वैल्यू आ रहा है दैट विल बी प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस.
देन विल मेक द ग्राफ की सपोज 0.2 है तो उसको कट मार्क करेंगे, देन वन स्ट्रेट लाइन विल बी फॉर्म, and after that you will get equation. What is the equation of a straight line? Y equal to mx plus c. Right. So we know the equation of a straight line is y equal to mx plus c. So in that, what is this mx? Slope. और c? c intercept. Right. तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें भी एक ये मिलता है, ग्राफ मिलता है. जस्ट अ मिनट, अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है यहाँ फिलहाल, बट एक मिनट. Yes, you can see my Excel sheet. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक्सिस पे हम यहाँ पे कंसंट्रेशन डालेंगे. ठीक है, ये आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा. एंड वाई एक्सिस पे यहाँ पे इसको हम ओडी वैल्यू कहते हैं, तो वाई एक्सिस पे ओडी वैल्यू डालते हैं. तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो आप लोग इसमें भी ऐसे ही करते थे. सपोज 2 पे व्हाट इज द ओडी रीडिंग, सो दैट ओडी रीडिंग इज कमिंग 0. at 0.4 concentration OD reading is coming 4, then at 0.6 it is coming around 7, 0.8 पे आपका 0.85 है, एंड 1 पे आपका 1 आ रहा है. ओके, देन बेस्ड ऑन दिस क्या करते थे आप लोग, सेम थिंग, एक स्ट्रेट लाइन वी यूज्ड टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग द मैक्सिमम पॉइंट. तो ऐसे ही आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, and then with this straight line you will get one equation, y equal to mx plus c, like this. Okay, and now if you have this equation, with this equation you can calculate the, अगर आपको y का वैल्यू पता है, then you can get the x value, right? Yes, ma'am. अगर आप, तो सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं कि सपोज ये तो आपका नोन कंसंट्रेशन था, 0.2 0.468 आपका नोन था, लेकिन सपोज यू आर गिवन विथ एनी सैंपल और उसकी ओडी रीडिंग आपको मान लो कि यहाँ पे आ रही है 0.8 आ रही है, दैट मीन्स कि योर y इज 0.8. सो देन विद दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज योर करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन. तो हम बता सकते हैं कि ओके इन आवर सैंपल दिस इज द देयर. तो ये तो जब एक्सेल में, लेकिन सपोज यू आर नॉट गिवन विथ एक्सेल, यू हैव जस्ट डेटा with you, आपको मान लो इस तरह से आपका कंसंट्रेशन है, योर एब्जॉर्बेंस इज लाइक दिस, देन व्हाट यू विल डू, सपोज आपका अननोन सैंपल है, यहाँ पे अननोन सैंपल है एंड आपको रीडिंग यहाँ पे समथिंग 0.9 रीडिंग आ रही है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.9 है, देन वी विल ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन ऑन दिस परपेंडिकुलर, and then corresponding to this line we'll draw one perpendicular to x-axis, and now this value that is coming around 0.9 that will be the your concentration of unknown sample, right? ऐसे कुछ करते थे, याद है आप लोग को या नहीं? मैथ्स में जब करते थे y एक्सिस से क्या करते थे, we used to draw one perpendicular on this line. y एक्सिस आपको पता है, this is you are getting 0.9, बट ये आपको पता नहीं है कि आपका जो अननोन फूड सैंपल जो मैंने दिया था आपको सैंपल, इन दैट हाउ मच कंसंट्रेशन इज देयर. आई हैव आस्क्ड यू दैट टेल मी द व्हाट इज द कंसंट्रेशन, बट व्हेन यू रन दैट सैंपल इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यू आर गेटिंग ओडी रीडिंग एज 0.9. तो आपको 0.9 यहाँ पे ओडी रीडिंग मिल गया. परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करोगे, suppose it is sitting on this point, then now from this point one perpendicular will be drawn to the x-axis. So wherever it is cutting on the x-axis, that is the your concentration. तो ऐसे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0.9 पे कट कर रहा है, that means your concentration of glucose in your given sample that is the 0.9 ग्राम या 0.9%. हम लोगों ने जैसे 0.9% बनाया था, तो it will be 0.9%. तो this is how we are calculating quantitative amount of any chemical or whatever we are doing the experiment. तो ये समझ में आया नहीं समझ में आया, ये बताओ पहले. नहीं समझ में आया तो घर में जाकर एक बार मैथ्स वाला फिर से देखना कि कैसे y से x एक्सिस पे करते थे, क्योंकि ये आप लोग को लैब में करके मैं आपको, मे बी आपके पास अगर टाइम कम होगा तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने नहीं बोलूंगी. आई विल जस्ट गिव यू दीज वैल्यूज एब्जॉर्बेंस एंड देन बेस्ड ऑन दैट ओनली यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस यूजिंग ग्राफ. ओके, तो सबको ये करना पड़ेगा. 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं आपको. अगर ऑफलाइन होता है तो आप सब लोग को प्रैक्टिकल करके वहां पे कैलकुलेट करके देना होगा, देन ओनली आई एम गोइंग टू गिव यू मार्क्स, अदरवाइज नो मार्क्स. तो अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ लो, घर पे जाके एक बार अपना देख लेना कैसे करते हो.
वैल्यू ओडी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? ओडी वैल्यू वो मैं अभी बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दैट इज डन बाय इंस्ट्रूमेंट ओनली। आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। आप जैसे ही यहाँ पे सैंपल डाल रहे हो, सपोज आपने अननोन सैंपल आपने यहाँ पे डाला, दैट विल डिस्प्ले सम ओडी वैल्यू, सो दैट ओनली यू हैव टू राइट हियर कि आपने जब 0.2 डाला था तब आपको इतना वैल्यू आ रहा था, 0.4 डाला था तो इतना आ रहा था, 0.6 का, तो आपने जो अननोन सैंपल डाला तब आपका ओडी वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये सारा वैल्यू दिया रहेगा आपको। और अगर एक्सपेरिमेंट करने में आप लोग एक्सपर्ट हो गए इंस्ट्रूमेंट रन करने में, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे, बट इन केस अगर वहां तक नहीं कर सकते हो तो आई विल गिव यू ऑल दीज वैल्यूज, ओनली यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, अननोन का कितना कंसंट्रेशन होगा, उसके लिए आपको ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, आज घर पे बैठ के सब लोग इसको बनाकर देखना कि आप लोग को ये वैल्यू मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जाम पेपर लिखना नहीं है तो जस्ट पेपर पे कैसे ये वैल्यूज आ रहे हैं, देन नथिंग यू हैव टू डू। सपोज दिस इज द 0.9, तो आपका 0.9 कहाँ होगा, यहाँ पे समथिंग होगा, सो स्केल लेके एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे खींचना है, सो दिस विल कम टू दिस पॉइंट, देन अगेन कीप योर स्केल एंड यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचो, एंड देन यू सी, तो इट विल बी अराउंड 0.9 और 0.85 समथिंग आपका ये वैल्यू होगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। Excuse me, ma'am. Yes. And the experimental values are not falling on the straight line. So how do you estimate that the straight line should have a intercept that is given by the equation? See, actually, this is with Excel we are getting R square value around 0.94. That means कि correlation is around 94%. So if it is coming more than 90% or around 95%, that means कि these values are okay, correct. अगर ये 95 से कम आता, it's around 94, मतलब 95, then we have to repeat the experiment and then we have to see. तो अगर 90-95 के आसपास आ रहा है, that means कि these values are correct only. Means there are some chances of experimental error or reading fluctuation, all those things. But since R square value is coming very high, so we can think that these values are correct only. लेकिन अभी आप लोग को उतना वो समझने की जरूरत नहीं है, because you will not be given the Excel sheet to do this experiment. You will be given the graph paper to plot that one. Okay, तो आपको अभी उतना ये ध्यान वैल्यूज नहीं आ रही, लाइन शुड कट मैक्सिमम पॉइंट्स, या फिर इट शुड बी इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द दैट मैक्सिमम पॉइंट। आपने शायद मैथ्स में भी ये पढ़ा होगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स को ये टच करना चाहिए या उसके आसपास से गुजरना चाहिए, दैट इज द स्ट्रेट लाइन योर। It is not possible for 100% to cut or touch. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So this is about this plot. Now the question comes that how this spectrophotometer works. ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल जानना जरूरी है। ओके, तो spectrophotometer works on the principle of spectroscopy. And now the question comes, what is this spectroscopy? कोई आइडिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में? व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम बेस्ड होता है। यस, वेरी गुड। डिफरेंट कलर्स को यूज करते हैं उसके लिए। Yes, spectroscopy is nothing but it deals with the interaction of electromagnetic rays with the matter. मतलब मैटर जो भी हमारे आसपास है, लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो मैटर। तो उस केमिकल में जो कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जब हम बात करते हैं तो जनरली वी से अबाउट द व्हाइट लाइट ओनली, दैट सनलाइट, मतलब जो भी रेज आते हैं, तो उतना फिजिक्स आपको समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मीन दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम योर एक्सरे, गामा रेज टू द इंफ्रारेड, यूवी रे, जो भी लाइट आप जानते हो, दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो ये सारे रेज जब किसी मैटर से पास करते हैं, हाउ इट इंटरेक्ट विद द मैटर, हाउ इट इज डिस्टर्बिंग दैट मॉलिक्यूल, इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसके एटम में डायरेक्ट जा रहा है, टच कर रहा है, न्यूट्रॉन तक टच कर रहा है, या जस्ट उसको टच करके बाहर निकल जा रहा है, दैट इंटरेक्शन इज स्टडीड अंडर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे टाइप ऑफ मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लाइक इंफ्रारेड है, एनएमआर आपने भी सुना होगा कि एनएमआर वो जो बट आर इंटरेस्टेड ओनली इन द फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें कि मतलब वो लाइट और ये क्या कैंसर
are interested in that only. Okay, so इसको explain करने के लिए that is called light absorption है and how it is interact with the environment that outcome. तो ये है मतलब नॉर्मल वेटेज में नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे सभी given this example और जब इसे लाइट से पास करता है तो what are the possibilities कि या ये सैंपल इसको एब्जॉर्ब ले लेगा और इट कैन बी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसको इमिट कर सकता है या फिर इसको स्कैटर कर सकता है. तो बेस्ड ऑन दिस थ्री प्रॉपर्टीज देयर आर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. Spectroscopy, scattering and emission. So we are interested in the absorption spectroscopy. Okay, क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं वहाँ पे absorption होता है. That is only optical density. That is absorption. कितना absorb कर रहा है. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या था कि साइंटिस्ट था उन्होंने लॉ किया है लैम्बर्ट लॉ. दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था. तो उनका क्या था कि जो आपका absorption है that is directly proportional to the concentration and the path length. मतलब कि जो मटेरियल से पास कर रहा है, जिस मैटर से पास कर रहा है, what is the length of that material, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है and then what is the concentration. ये दो चीजों पे डिपेंड है. ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है. जब यू रिमेंबर what is the principle of absorption spectroscopy, it is based on the principle of Lambert-Beard law. Okay. ये Lambert-Beard law पे based है. और what is the law? Law states that absorption is directly proportional to the concentration and the path length. जो चीजों पे डिपेंड करता है. तो path length कहने का मतलब ये क्या है? That is not exactly कि हम जब ये स्पेक्ट्रोमीटर पे काम करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर में जो भी सैंपल रहता है सर्किट में लगे रहते हैं. ये लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है दैट डिस्टेंस कॉल्ड एज द पाथ लेंथ. ओके, और कंसंट्रेशन तो आप समझ रहे हो कि ऑब्वियसली जो डार्क लगा होगा तो इसका मतलब दैट इज द हाई कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन होगा. बट जनरली क्या होता है व्हेन वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन आवर लैब और नेशनली ये जो सैंपल जनरेट जिसकी मैंने बोला दैट इज फिक्स. वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे करता है. मतलब लंबाई ये जो चौड़ाई है बाई कह रहे हो आप बाई यानी ये जो एरिया होता है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली. तो दैट्स व्हाई आपका क्या होगा यहाँ पे जो ये इक्वेशन की बात कर रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absorption is directly proportional to the concentration होता है. ये पाथ लेंथ होता है दैट इज कांस्टेंट दैट इज 1 सेंटीमीटर फॉर एवरीथिंग. ओके, absorption is directly proportional to the concentration. ये जब वो डार्क कलर कंपाउंड होगा तो वहाँ पे absorption या ऑप्टिकल रीडिंग इसकी ज्यादा होगी, लाइट कलर होगा उसका कम होगा. तो ये जब हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे कि अभी जैसे इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पे क्या था कंसंट्रेशन था तो इसकी absorption था दैट वाज 0.3 ओनली. हाई कंसंट्रेशन है कि absorption 1 हो रहा है. सो यू कैन सी दैट absorption is directly proportional to the concentration. So this is the basis of your spectrophotometer. Okay, doubt spectrophotometer में? Okay, then बोलिए. Xylem is the molar absorptivity. Does it change with temperature or physical conditions? नहीं, this is fixed for that particular compound. ये change नहीं करता है. compound fixed होता है that is fixed thing. It is constant. So you are basically मतलब आपको इतना डिटेल स्टडी करने की जरूरत है. You should understand and know that it is directly proportional to path and the concentration. Path is fixed at 1 centimeter. That is directly proportional to the concentration. High concentration that means will be dark in color. Light concentration low, smaller will be the OD reading. ये चीज आप स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिकली ये समझना है. And once you are clear with this principle, then you have to concentrate on how to calculate the value. Value कैसे calculate करेंगे आप ये करना है. तो यहीं पे फिनिश करें या फिर और पढ़ना चाहते हो आप लोग? yes ma'am. क्लास भी अभी मैं पढ़ा सकती हूँ पर आप लोग मुझे लग रहा है कि सेकंड की क्लास थोड़ी बोरिंग हो रही है. नींद है. Okay ma'am. Okay ma'am. और बताना चाह रही थी. इसमें क्या होता है दो टाइप का हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर होता है. वन इज कॉल्ड
अभी यूवी रेस्पिरेटर अदर वन इज विजिबल। तो क्या होता है कि डिपेंडिंग लाइट सोर्स, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है कि एक्चुअली यही होता है, एक लाइट सोर्स रहता है दैट इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द सैंपल। तो अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट देना करेगा तभी वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है जिससे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देन ये लेंस होता है। तो इसमें अपना काम क्या है कि ये जो डिफरेंट वेवलेंथ होता है उसको पट लगता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम देखेंगे we will say saying that it is estimated at 6 nanometer। कोई पर्टिकुलर नैनोमीटर में हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। Then why we are getting particular nanometer? Because at that particular nanometer absorption will be the maximum। उसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू एक्सपेरिमेंट फॉर एनी कंपाउंड। मान लो प्रोटीन तो पता हो लेकिन कोई नया डिस्कवर कर लिया, बायोलॉजी डिस्कवर कर लिया एंड यू डोंट नो व्हाट absorption it is going to absorption maximum। तो फिर क्या कहते हैं कि ये भी जो रेंज होता है 0 से लेकर 900 तक वो स्कैन करते हैं एंड देन यू से दैट एट व्हाट कंसंट्रेशन absorption is the maximum। तो that particular wavelength is select for that area। तो जैसे प्रोटीन है तो हमने देखा क्या 6 नैनोमीटर जो है तो उससे ज्यादा आ रहा था। तो that we are going to fix okay whenever you have to totally select wavelength as 6 nanometer। okay तो ये चीज का काम कैसा है, you have to ये करना। तो यहाँ पे ये पैड इस पैड हम क्या कहते हैं, इसका वेवलेंथ सेलेक्ट कर देते हैं कि एट 6 नैनोमीटर हैवी टू रन सैंपल। फिर क्या करेगा ये, इसमें हम आपको पर्टिकुलर नैनोमीटर का वेवलेंथ इससे पास करवाएगा एंड देन वंस द वेवलेंथ इज पास व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन वो आपको यहाँ पे लगा दैट इज द प्रोसेस एंड दैट इज कन्वर्टेड एट डिस्टेंस। तो ये आपको लेता है। तो ये what is the source of light, whether it is visible range or it is infrared or it is based on that different types of spectrophotometers are there। तो कुछ कंपाउंड है कि that is not visible in the visible region, that need to run either infrared or generally करेगा that will give the visible or UV rays। और आजकल में नए स्पेक्ट्रोमीटर आते हैं दैट इज विजिबल। तो इसमें स्पेक्ट्रोमीटर यूवी एज वेल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इज बट फॉर यूवी विजिबल इन सेम। यहाँ पे ये जो आप जो बताना नहीं कहीं पे लगा रहा है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप लैब में और लैब में करोगे तो यहाँ ये देखो हमारे पास भी है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। एंड वन थिंग इज जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा साइज बढ़ा ये देखो यहाँ पे दो वेव लगा है। ओके जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा हम दो वेव यूज करते हैं। जो यूज करते हैं तो इसका क्या कहते हैं कि वन इज ब्लैंक एंड अदर इज सैंपल। कभी ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस ब्लैंक। कभी ब्लैंक वाले में ब्लैंक यूज करते हैं और ब्लैंक जैसे यूज करते हैं। मतलब क्या होता है ब्लैंक का ब्लैंक कहने का मतलब है कि हमारा सब कुछ हमें प्रोटीन बनाना है एंड प्रोटीन विल हैव टू ऐड हाइड्रोजन रिएजेंट। ओके तो आपका क्या टेस्ट में आप प्रोटीन डाला देन यू हैव एडिंग हाइड्रोजन रिएजेंट एंड देन यू विल सी द एब्जॉर्प्शन। तो ब्लैंक क्या होता है, जहाँ पे आपने सैंपल डाला था वहाँ पे हम नहीं डाल के वाटर डालेंगे या फिर सपोज ग्राइंड कर रहे हैं हम कोई भी मतलब सबसे नहीं बाबा में आप लोग करके आप डालोगे नहीं बाबा का वीडियो बनाओगे पेस्ट बनाओगे देन उसको करके दैट टूल्स ओनली वी हैव टू यूज हियर। तो उस यूरिया पेस्ट बनाने के लिए आपने क्या सॉल्वेंट यूज किया दैट सॉल्वेंट ओनली वी आर टेकिंग द ब्लैंक। सपोज वी हैव यूज्ड एसिड और इथेनॉल एनीथिंग यू यूज। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1 ml सिर्फ इथेनॉल लेंगे और उसमें हाइड्रेट डालेंगे। जो आपका उसमें क्या करेंगे 1 ml आप लोगे और देन हाइड्रेट डालोगे और उसके बाद आप इसको ओडी रिजेक्ट करोगे। तो हम ये ब्लैंक को लेते हैं बिकॉज़ समटाइम्स व्हाट हैपेंस बिकॉज़ दिस मिथेनॉल some kind of absorption will happen। क्योंकि मिथेनॉल में भी मैटर है तो अगेन मिथेनॉल का इंटरेक्शन कैसा होगा तो नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट मिथेनॉल कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है दैट विल बी ओनली फॉर योर गुआवा नॉट फॉर योर मिथेनॉल।
we are using blank. So final reading whatever you are getting from that value, this blank value is subtracted and that will give you the final result. Okay. तो ये जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, बट फॉर टाइम बिंग यू अंडरस्टैंड देयर आर टू क्यूबेट, वन इज ब्लैंक, अनदर वन विल बी द सैंपल. So whenever you are doing any experiment, you have to prepare first blank and then the main sample and then compare the results. Okay, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर बाकी चीजें हम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगी मैं. Okay then, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.